और सियासत की बड़ी अलग तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। बुलंदशहर की ये तस्वीर है जहां पर एक चौराहे पर प्रचार के दौरान अखिलेश, जयंत और प्रियंका का जो काफिला था वो आमने सामने आ गया। मुस्कुराते हुए प्रियंका गांधी की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बुलंदशहर का एक चौराहा जो कि सियासत की बड़ी दिलचस्प और अनोखी तस्वीर का गवाह बना, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। अखिलेश को देख करके प्रियंका गांधी ने हाथ हिलाया, वहीं अखिलेश और जयंत ने भी जवाब में प्रियंका को नमस्कार किया और दोनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट नजर आ रही थी। खास बात यह है कि जो कार्यकर्ता, अक्सर ऐसा होता है कि विरोधी पार्टियों के जब कार्यकर्ता आमने सामने आते हैं तो एक ठसक नजर आती है, एक आपस में डर होता है कि कहीं झड़प ना हो जाए या फिर एक दूसरे को हूटिंग ना करने लगे, लेकिन यहां पर बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आया। दोनों ही तरफ के जो कार्यकर्ता थे वो इसको लेकर के बेहद जोश में नजर आ रहे थे और जैसा लग रहा था कि एक दल दूसरे दल के सामने आ गया। और ये देखिए, ये तस्वीर बेहद और बेहद अहम तस्वीर है और इससे पहले ऐसी तस्वीरें सियासत में बेहद विरले ही देखने को मिलती हैं। प्रियंका गांधी जो ये हाथ हिलाते हुए अपनी गाड़ी के ऊपर से दिख रही हैं, दरअसल ये अखिलेश और जयंत चौधरी को हाथ हिला करके उनका अभिनंदन कर रही हैं और अपनी जो बस है, जो विजय रथ है अखिलेश और जयंत का, उस पर छत पर सवार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं। वो भी हाथ जोड़ करके प्रियंका का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और हाथ हिला करके उन्हें भी वेव कर रहे हैं। Good day, folks. The thing about roses is long stems look beautiful, hey, but more often than not they hardly bloom, and more often than not they don't have any khushbu, no nice smell, folks. So what do we have that smelled really nice, smelled good? Was the video that's just gone up for you guys, where you have this accidental meeting of the caravan of in Bulandshahr of Jay and Viru and Priyanka. It says rape murder case, Priyanka meets kin, RLD poser for BJP. The approaching cavalcade of SP RLD fronts Akhilesh Yadav and Jayant Chaudhary brought Congress leader Priyanka Gandhi Vadra's convoy to an abrupt halt as she campaigned and gave a thumbs up. Akhilesh and Jayant reciprocated with a namaste. Later Akhilesh wrote on Twitter, ek dua salam tehzeeb ke naam. Priyanka replied, hamari bhi aapko ram ram. Now this, folks, was this planned? I want to know. Kind of really coincidental. Then what do we have? To save democracy, support SP RLD. Akhilesh tells BSP. RLD candidate in Bijnor booked for sedition. What else do you have? Why aren't we booking Yogi for sedition? And he's the guy who really needs to be booked. 2 youths held within hours of OIC attack. So there's all kinds of plans happening. Now if it's, they're waiting for the Muslim to say something, but he just isn't. But why these regional parties are important is this. On the national stage, the rise of regional forces. Various factors favor regional parties over national parties today. In many of the recent assembly elections, voters have preferred regional parties and local satraps over national parties. The Delhi elections were held immediately after the Lok Sabha elections. The capital, which had given all its Lok Sabha seats to the BJP, voted decisively in favor of AAP in these polls. This was repeated to some extent in West Bengal. The second reason is that some regional satraps have understood the BJP's political playbook and they are using this to their advantage. Happening Jay Viru. This is why they believe that with the right combination of strategy and coordination, they can make inroads into the political power structure on the national stage. Hallelujah. तो रावत लोग जो हैं इस इलाके के, वो किधर है इस बार? हम दूसरे को नहीं बता सकते, हम खुद सपा में जाएंगे। इससे पहले योगीनाथ को ही वोट दिए थे, मैं इस बार नहीं देंगे। पिछली बार योगी जी को दिया था जी, इस बार नहीं, इस बार नहीं देंगे। सरकार नहीं आएगी इस बार। जितने भी गेहूं इस समय लगे हुए हैं, ऐसा कोई खेत नहीं जहां पे न चरा गया हो। एक बार चर के नष्ट हो चुका है, दोबारा फिर हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं बाराबंकी के एक गांव है जकरिया, उसमें खड़ा हूं और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं। पीछे खेत देखिए और ये आवारा पशु देखिए। मैं पूरे इलाके में घूम रहा था तो मुझे सबने ये बताया कि इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो आवारा पशु हैं। लोग बता रहे थे, तब तक मैंने ये सीन देखा।
अब आप बताइए किसान कितनी मेहनत के साथ फसल उगाता है, फसल तैयार करता है, पानी की परेशानी, खाद की परेशानी, और जब फसल तैयार होती है तो इस तरह आवारा पशु आके उसकी फसल चढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नए चीफ सेक्रेटरी आए थे और उन्होंने कहा था कि डीएम और एसडीएम और वीडीओ गांव में निकलें, सड़क पे निकलें, किसी खेत में आवारा पशु नहीं होने चाहिए। मगर मेरे सामने के आप मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, एक गांव में आप सोचिए क्या हाल होगा, फसल उजड़ जाएगी। कहाँ पूरे जिंदगी का सवाल होता है, पूरे साल का सवाल होता है। जो खेत वाले हैं मैं इनको बुला अग्रवाल के घर गए और ना राधा मोहन अग्रवाल योगी आदित्यनाथ के घर गए, और मेरे बीजेपी के गोरखपुर के पुष्ट सूत्रों ने बताया कि दोनों के बीच फोन पर भी बात नहीं हुई। मतलब राधा मोहन अग्रवाल आहत हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए जिस निष्ठा से काम किया उस निष्ठा का परिणाम उनका टिकट काट के दिया गया। अब गोरखपुर के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं लगातार कि जैसे ब्राह्मण नाराज हैं, बताया जाता है 60-70 हजार ब्राह्मण है उस विधानसभा पर। अगर विधायक नाराज हुए, पिछड़ी जातियों दलित जातियों में संदेश है कि यह सरकार ठाकुरवादियों की है, ठाकुरों की है, पिछड़ों दलितों की बड़ी उपेक्षा है। अगर पंडित जी लोग नाराज हुए और पिछड़े दलित पंडित जी के साथ आ गए और राधा मोहन अग्रवाल की नाराजगी हो गई तो बाबा जी तो मुसीबत में आ जाएंगे भाई। इस बार जो शिमला बना रहे हैं, जो गर्मी खत्म कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनका तापमान गोरखपुर के हालात देख के खुद बढ़ रहा है। गर्मी शामली में खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, गर्मी गोरखपुर में आके खत्म हो रही है। हालात खराब है गोरखपुर, और गोरखपुर इस समय पूरे देश में लोगों के लिए चर्चा का विषय बना है कि गोरखपुर में होने क्या जा रहा है। हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे कि गोरखपुर के कुछ और हालातों के बारे में आपको जानकारी दें, आपको बताएं। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यूपी की राजनीति में जुड़ी कोई भी खबर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 4PM। सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, हम आपके साथ हैं हमेशा हमेशा हमेशा। थैंक यू। So as you can see from the 3 videos that I've run above, there is this Pashu business that's going to cause a huge bunch of problem, which whether it's Western UP, whether it's Eastern UP, all of the farmers are suffering from that. These are feral cows that have essentially been out on the field because of not about anything else. Gaushalas are absolutely, as you heard the story of those 100 or so dead or killed and buried alive in Madhya Pradesh, that's a scam. That's all the Gaushalas are doing. All these BJP, Bhagwadari people who claim take all this money, don't feed the cows, bury them or leave them out in the fields. And it's all about this cow lynching. Is that why nobody is really doing anything about it, right? And there's Pashu trouble. Then as you see, there's trouble in Gorakhpur. It seems like that guy's having a really, really tough fight, or he's going to have Yogi. He's being collared, whether it's being collared by the opposition or by the 2 Chanakya and his boss, we don't know. But to see what's happening to Mahesh Sharma in Western UP, even he's a member of parliament. Even he's being bullied out. So what do we have here? Shah highlights double engine growth for UP. If that was the case, why are all these folks being khaderoed, and why isn't he not telling us about those lovely economic figures? Because folks, the truth is he doesn't know, he doesn't care, and the fact is that the difference between what Yogi Sarkar is averaged is less than 1/4 of what was averaged by Akhilesh Sarkar. Okay, goons coming out of hiding. Shah takes a jibe at SP list, and do remember 99 folks in the BJP list also have criminal records. 1 to 100. That'll be the first. Akhilesh does not listen even to his dad, Shah, to Jayant. Now this is the worry that they have, folks. That Jayant is causing huge bunch of problem. In big message, top BJP netas accompany Maurya for nomination. Maurya is in trouble, folks. If you've seen the videos, bhag Maurya, bhag Maurya, bhag. And the funny thing is, Dainik Bhaskar has finally put it out there, right? Which means, as Sanjay Sharma had earlier pointed out, as soon as Election Commission, the code is announced, most of these papers will at least start giving you some kind of real news. Steam over water scheme, allies BJP, JDU face off in Lok Sabha. This is a trouble engine that's going to break down. If UP is lost, the next loss is going to be Bihar. Cheers. मुर्दाबाद मुर्दाबाद
ये देखिए गांगुलेड़ा में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री रह चुके पूर्व महेश शर्मा आए थे, तो उनका विरोध करते हुए काले झंडे के साथ काम के कुछ लोग मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद। ग्रामीणों ने किया बीजेपी का विरोध। सोशल मीडिया पर हुआ जमकर वायरल। गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के सामने लगे बीजेपी मुर्दाबाद के नारे। सोशल मीडिया पर जमकर हो गया वायरल। हमसे क्या मतलब है यार, तुम कोई ना भाई खूब लगाते हो नारे, उसका ठीक है कोई बात ना, हो जाओ नारे लगाओ, हमको रोक रहे तुम, जाओ। वीडियो सांसद महेश शर्मा के सामने ग्रामीणों ने लगाए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे। देखिए पूरा वीडियो। कौन पार्टी या कौन नेता कर रहा है, और आज उन्होंने बहुत स्पष्ट और बुलंद इरादे के साथ कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन शिक्षकों कर्मचारियों को लागू करेंगे। ये ऐतिहासिक फैसला है। देखिए जनता तय कर लेती है और जनता तय कर लिया है। अब इधर उधर जिधर वो सब जा रहे हैं समाजवादी की तरफ। हक है, आप 403 सीटों का चुनाव कराने जा रहे हैं, एक भी सीट एक भी दिन आगे नहीं बढ़ेगी। और रोजगार के लिए 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल आपको करना पड़े, उसके बाद फार्म भरने के रात में जाके स्टेशन बैठ रहा है, अपने कपड़े और लते लेकर के किराया उधार लेकर जा रहा है, उसके बाद पेपर लीक सुनाई पड़ रहा है। ये सरकार की बहुत बड़ी फेल हो रही है और इसको नौजवान देख रहा है, इसलिए कह रहा है हमारा पेपर लीक हुआ है ना, तो आपका भी पेपर हम लीक करने जा रहे हैं। चुनाव काफी बड़ा मुद्दा था जिसे लेकर संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। आने वाले समय में बदलाव होगा 2022 में? बिल्कुल, हमारा कर्मचारी जितने भी एनपीएस के हैं, ओपीएस के हैं, जो कर्मचारी की बात करेगा, कर्मचारी उधर अपना सपोर्ट करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे जहां पर हमें मुस्कुराते हुए चेहरे मिल रहे हैं। वैसे मुस्कुराते हुए चेहरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मुस्कुराहट तो है ही कुछ दिनों से। मुस्कुराहट की वजह बताएं पहले से। देखिए अटेवा जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रदेश से लेकर देश तक संघर्षरत था, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पेशली इसी के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कही है। और ये ऐतिहासिक फैसला है पूरे देश के लिए, क्योंकि देश का कर्मचारी इंतजार कर रहा था कि हमारी बात कौन पार्टी या कौन नेता कर रहा है। और आज उन्होंने बहुत स्पष्ट और बुलंद इरादे के साथ कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन शिक्षकों कर्मचारियों को लागू करेंगे। ये ऐतिहासिक फैसला है। बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला। पहले तो नाम बताएं। नाम मैं विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS और प्रदेश अध्यक्ष अटेवा उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। इससे पहले ये बताएं, जो पेंशन का जो मुद्दा है ये बहुत समय से रुका हुआ था और बहुत समय से लोगों के ध्यान में भी था कि कब होगा, आखिरकार इस पे फैसला होगा। आने वाली सरकार जब अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है और ये सब नियम लागू हो जाते हैं, क्या आप इसको सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं या फिर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सरकार बनाने का ये मास्टर स्ट्रोक है जो आज अखिलेश यादव ने चला है। और शिक्षक कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश का 22 लाख है, जो एनपीएस में 13 लाख है, आज उसने क्लियर हो गया कि हमारी बात कौन कर रहा है, हमारा मुद्दा कौन उठा रहा है। और ये मास्टर स्ट्रोक पुरानी पेंशन में एक बड़ा फैसला होगा और सरकार में बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ होने जा रहा है। और आज तो मतलब ये तय हो गया कि सरकार किसकी आने जा रही है। ये आज फैसला अखिलेश यादव ने अपने से कर दिया शिक्षकों कर्मचारी के लिए घोषणा पत्र। Okay, so you heard the video above. This pension business is going to throw a huge spanner in the works for the BJP's Chanakya, who basically, besides managing at the poll, they basically mess around with machines and postal ballots. Once these guys are on their side, which it seems like now, trouble ahoy, trouble ahoy. But there's also seems to be trouble in Manipur. Problem of plenty, delays BJP tickets list in Manipur. Battle for Manipur. The BJP hopes to extend its run in Imphal. Congress wants to retake the state. It can with a little bit of effort, because they are chaffing at the bit. They understand that this hegemony of cultural hegemony is not for them, and this Sarkar can only do that. But will they do it? I don't know. Mamta's, and for that Rahul really needs to get there. I'm sure I hope he does. Mamta's UP drive, part of TMC national plan. Government moves to block MP query on fallen India's democracy index. Hey, pray why, folks? For all of us, we need to know why. Rahul in Raipur, BJP leading India on path of danger, pitting one state against other. He's in Raipur, doing the same messaging for polls in the 5 states, but he should physically be there in Goa and Manipur.
Wait nears end, Channi pulls ahead in Congress race for CM face, about time. And this is the lady who you got to take your hats off for our democracy. Mahua government wants to alter history. It mistrusts present and fears the future. And she actually asked them to take a shot of Gau Mutra. That was brilliant. I thought that was brilliant. Jai Hind.